Good morning, dear students. How are you, beta? Fine. Very good. Beta, soon your periodic assessment will start. So, you should revise your work side by side. Okay. Beta, today we will start our chapter 11 Money. So, open lesson 11 Money, beta. We will do warm-up exercise given on page number 131. Exercise 11.1 given on page number 132 and 133. Exercise 11.2 question 1 given on page number 134. Before starting our warm-up exercise, we will do maths lab activity related to money. Beta, we will do an activity related to our lesson 11 money. This is our toy shop. Beta, your mother has given you rupees 500 for buying a toy from this toy shop. So you will choose a toy. Here is a jeep which costs rupees 420. Poohoo costs rupees 200. This doll costs rupees 250. Doraemon costs rupees 175. And an aeroplane costs rupees 400. Suppose you choose this Poohoo whose price is rupees 200. So you want to buy a Poohoo of rupees 200. You will give shopkeeper 500 rupees note. Now you will see how much money the shopkeeper will return to you. Okay. What will you do? You will subtract 200 from 500. 500 में से आप क्या करेंगे? 200 को subtract करेंगे. ठीक है? तो वो आपके पास आ जाएगा कि शॉपकीपर आपको इतनी मनी रिटर्न करेगा. अब बेटा मुझे बताइए व्हाट इज 0 minus 0? 0 minus 0 is 0. 0 minus 0 is 0. 5 minus 2 is 3. So the shopkeeper will return rupees 300. He will take one 200 rupees note and one 100 rupees note. 200 plus 100 is 300. He will return 300 rupees to you. Okay. Now beta, suppose you are Shikha and you want to buy 2 toys from this toy shop. Your mother gave rupees 1000 for buying these toys. You choose aeroplane and this doll. This aeroplane costs rupees 400 and this doll costs rupees 250. First of all, you will find the total money of both these toys. For finding the total money, बेटे आप क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे ना? तो आप क्या करेंगे? रुपीज 400 एंड रुपीज 250 को आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे. 400 आपकी एरोप्लेन की कॉस्ट है और 250 डॉल की कॉस्ट है. 0 plus 0 is 0. 0 plus 5 is 5. 4 plus 2 is 6. So beta, so the total cost of both these toys is rupees 650. And tell me how much money Shikha gave to the shopkeeper? Shikha gave 1000 rupees to the shopkeeper. So the shopkeeper will return the money now. What will you do now? You will subtract 650 from 1000. आप 1000 में से 650 को subtract करेंगे. These are 1000 rupees जो आपने शॉपकीपर को दिए और टोटल टॉयज आपने कितने की बाय की है? 650 के.
650 को आप ऐसे लिखेंगे ना, यहाँ पर 1000 प्लेस पर क्या लिखेंगे? 0. Now you will subtract all these numbers. What is 0 minus 0? 0 minus 0 is 0. Now बेटा, can you subtract 5 from 0? 5 नहीं subtract कर सकते ना 0 में से, तो आप क्या करेंगे? बोरो करेंगे. क्या बोरो कर सकते हैं 0 में से? नहीं कर सकते ना, तो आप कहां से बोरो करेंगे? 1 से. 1 का क्या बन जाएगा बेटे? 0. और इस 0 का क्या बन जाएगा? 10. अभी आपको यहाँ पर भी बोरो करना है ना, तो 10 का क्या बन जाएगा? 9. और इस 0 का क्या बन जाएगा बेटे? 10. Now tell me what is 10 minus 5? 10 minus 5 is 5. 9 minus 6 is बेटे 3. And 0 minus 0 is 0. So the shopkeeper will return rupees 350 to Shikha. Okay? He will return. He will take 200 rupees note, then 100 rupees note, and 50 rupees note. These are 350 rupees. He will return 350 rupees to Shikha. Okay, beta? Is this activity clear to you? Beta, this is warm-up exercise given on page number 131. Arun received ₹1000 for his birthday. The following day, he decided to go shopping. अरुण को बेटा बर्थडे पर ₹1000 मिलते हैं और उसी दिन वो डिसाइड करता है कि वो शॉपिंग पर जाएगा. He purchased a school bag worth ₹475. वो एक स्कूल बैग खरीदता है 475 रुपीज का. And then went to a toy shop to buy a toy for his younger sister. और फिर वो एक टॉय शॉप पर जाता है किस चीज के लिए? एक टॉय खरीदने के लिए अपनी छोटी बहन के लिए. अब बेटा देखिए, आप 1000 में से 475 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो 1000 में से 475 सब्ट्रैक्ट करने पर आपको पता चल जाएगा कि उसके पास कितनी मनी बची. 475. अब 1000 प्लेस पर यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप 0 लगाएंगे. अब सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा? 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, आप बोरो करेंगे. यहाँ से भी नहीं बोरो कर सकते, 0 में से भी नहीं कर सकते, आप 1 से बोरो करेंगे. 1 का क्या बन जाएगा? 0. और इस 0 का 10. अब आप इस 10 से बोरो 10th प्लेस के लिए करेंगे ना, तो 10 का क्या बन जाएगा? 9. और 10th प्लेस पर 0 का क्या हो जाएगा? 10. अब 10th प्लेस से बोरो 1st प्लेस के लिए करेंगे. 10 का क्या बन जाएगा? 9. एंड 0 का 10. 10 minus 5 is 5. 9 minus 7 is 2. 9 minus 4 is 5. And 0 minus 0 is 0. So he has left with the money with rupees 525. Next है, he would also like to buy a handbag for his mother. और वो उस टॉय शॉप से एक बैग भी खरीदना चाहता है मदर के लिए. Find out which toy and which handbag he can purchase with the remaining amount of money. अब जो इसकी लेफ्ट मनी है उससे वो कौन सा टॉय खरीदेगा और कौन सा हैंडबैग खरीदेगा, आपको ये फाइंड आउट करना है. बेटा उसके पास 525 रुपीज बचे हैं ना. अब आप देखिए, हैंडबैग जो है वो सारे बैग्स, ये 2 बैग्स हैं वो 500 से अबव है. और अगर ये वाला बैग वो खरीदता है वो 500 के नियर है ना, और जो टॉयज हैं वो 200 से ज्यादा रुपीज की हैं. तो इस बैग के साथ वो ये टॉय नहीं खरीद सकता ना कोई भी, तो आप इस बैग को भी नहीं लेंगे. सो ही विल टेक दिस बैग. ठीक है. अब 300 रुपीज का है ये फर्स्ट बैग, तो आप क्या करेंगे? 525 में से 300 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 5 minus 0 is 5. 2 minus 0 is 2.
5 minus 3 is 2. Left money is 225. अब आप देखिए 225 रुपीज का कौन सा टॉय है? ये टेडी है ना 225 रुपीज का. So he will buy this teddy and this handbag with rupees 525. Okay, you will write here teddy and first bag. He will buy teddy and first bag with 525 rupees. Okay. Beta, now this is question 1 given on page number 132. This is exercise 11.1. When Archana opened her penny bank, she got the following notes and coins. Count and write the number of notes and coins in the boxes. बेटा जब अर्चना ने अपना पेनी बैंक खोला तो उसको ये कॉइन्स और ये नोट्स मिले. आपको इन कॉइन्स और इन नोट्स को काउंट करके इस बॉक्स में लिखना है. अब देखिए बेटा 100 रुपीज के कितने नोट्स हैं? अर्चना को 100 रुपीज के कितने नोट्स मिले? 1 2 3. 3 नोट्स मिले ना 100 रुपीज के. सो यू विल राइट 3. ओके. अब हम 50 रुपीज की नोट्स काउंट करेंगे. 1 2. Here are 2 50 rupees note. So you will write here 2. Now you will count rupees 10. 1 2. ये जो कॉइन है ये भी 10 रुपीज का है ना, इसको भी आप 10 रुपीज में लेंगे. 1 2 3 4 5. 10 रुपीज की कितने कॉइन्स हैं एंड नोट्स हैं? 5. ओके. नाउ यू विल काउंट रुपीज 5. रुपीज 5 के नोट्स एंड कॉइन्स दोनों होते हैं ना. अब आप देखिए रुपीज 5 कहां पर है? दिस इज रुपीज 5. 1 2 2. Here are 2 coins of rupees 5. Now beta we will count the coins of rupees 2. 1 2 3. Here are 3 coins of rupees 2. Now we will count 1 rupee coin. 1 rupee coins are 1 2. 1 rupees coin. Is this question clear to you? Okay. Now beta this is question 2 given on page number 133. The cost of a book and a bag are as follows. ये बुक की कॉस्ट है रुपीज 120 और बैग की कॉस्ट कितनी है? रुपीज 365. अरुण हैज, ये कितने रुपीज बने हुए हैं बेटा? ये 200 रुपीज का नोट बना हुआ है. अरुण हैज रुपीज 200 विद हिम. अरुण कैन बाय द डैश बट नॉट द डैश. अब आप बताइए अरुण बुक खरीद सकता है या बैग खरीद सकता है? बुक खरीद सकता है ना, क्योंकि बुक 200 से कम है, उसके पास तो 200 रुपीज है. सो ही कैन बाय द बुक बट नॉट द हैंड बैग. नाउ दिस इज योर बी पार्ट. अहमद हैज रुपीज 200 विद हिम. अहमद के पास 200 रुपीज है. कैन ही बाय द बुक. क्या वो बुक खरीद सकता है? यस, ही कैन बाय द बुक. सी पार्ट इज हेलन हैज 100 प्लस 10. 100 प्लस 10 इज 110 रुपीज विद हर. हेलन के पास 110 रुपीज है. इज इट पॉसिबल फॉर हेलन टू बाय द बैग. क्या हेलन बैग खरीद सकती है? बेटा बैग की कॉस्ट तो 365 रुपीज है, पर हेलन के पास 110 रुपीज है, तो वो बैग नहीं खरीद सकती ना. सो यू विल राइट हियर नो. इन डी पार्ट सुमन हैज
rupees 200 plus rupees 100 plus rupees 100. 200 plus 100 is 300. 300 plus 100 is 400 with her. Suman has 400 rupees with her. Suman can buy a bag with this money. Is the statement true? क्या सुमन बैग खरीद सकती है इस मनी से? क्या ये ठीक है? बैग तो 365 रुपीज का है ना, और उसके पास 400 रुपीज है, तो वो खरीद सकती है ना. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. यू विल राइट हियर ट्रू. ओके बेटा, now we will do exercise 11.2 given on page number 134. I will solve A part, B part and C part. You will do D, E and F parts yourself. Okay? Add the following. आपको बेटे ये ऐड करना है. ओके, दीज आर योर ए, बी एंड सी पार्ट्स. अब ए पार्ट में क्या ऐड करना है बेटे? यू हैव टू ऐड रुपीज 72 एंड रुपीज 50. दिस इज द साइन ऑफ रुपीज. मैंने आपको बताया था ना, ये रुपीज का साइन है और ये नंबर से डिजिट से पहले आता है. ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? रुपीज 72. इसे आप वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे ना. पहले आप रुपीज 72 लिखेंगे, उसके नीचे रुपीज 50. नाउ यू विल ऐड बोथ दिस नंबर्स. 2 plus 0 is 2. 7 plus 5 is बेटे, 7 plus 5 कितना होता है? 12. So your answer is rupees 122. Now beta, this is your B part. In B part you have to add rupees 6 and rupees 58. अब बेटा देखिए 58 में तो 2 डिजिट्स है ना, और 6 में 1 डिजिट है. अब इसको आप 2 डिजिट कैसे बनाएंगे? 6 के आगे 0 ऐड करके 2 डिजिट्स बना लेंगे ना. सो यू विल राइट इट रुपीज 06 और नीचे क्या लिखेंगे? रुपीज 58. Now you will add both these numbers. 6 plus 8 is 14. शाबाश. 4 नीचे and 1 carry. 1 plus 0 is 1. 1 plus 5 is 6. So your answer is rupees 64. ठीक है, आंसर में रुपीज लिखना नहीं भूलना. ओके. C part is you have to add rupees 9 and rupees 238. अब बेटा देखिए 238 में कितनी डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स है ना, और 9 में 1 डिजिट है. अब 9 को भी आप 3 डिजिट बनाएंगे ना. 9 को 3 डिजिट बनाने के लिए आप क्या करेंगे? 9 से पहले 0 0 ऐड कर देंगे ना. सो यू विल राइट रुपीज 009. 9 रुपीज को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, और उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे? रुपीज 238. Now you will add both these numbers below. 9 plus 8 is 9 plus 8 is beta 17. 7 each and 1 carry. 1 plus 0 is 1. 1 plus 3 is 4. And 0 plus 2 is beta 2. So our answer is rupees 247. Okay. Beta, I think today's topics are clear to you. And today's thought is, don't be afraid, be focused, be determined, be hopeful, be empowered. आपको बेटा किसी काम से घबराना नहीं चाहिए. आप जो कर रहे हैं उस पर अपना फोकस रखना चाहिए, और उस काम को पूरा करने की आपकी इच्छा होनी चाहिए. अगर आपकी फोकस और इच्छा होगी तो वो काम आपका जरूर पूरा होगा. ओके.
Thank you. Have a nice day.